Good morning, everyone. This is Monish Kandulia. So we were studying class 9th history chapter 1, that is French Revolution. So we have studied 2 points. So the French Revolution, which began on 14th of July 1789, okay, and when it began, people were thinking that all ammunition were lied in Bastille. So people, normal population, moved in Bastille, and it destroyed Bastille, which was fortress prison. Why people destroyed fortress prison? Because they were finding ammunition. Okay, so and why they were finding ammunition? Because they were fed up of despotic power of king. Okay, so beginning of chain of events started by middle class, affected and shaken lower class. Why lower class was shaken? Because unprivileges or extra privileges given to first state and second state. How extra privileges were given? First state, that was clergy, they were given extra privileges in the form of tithes, tax, that is tithes. So tithes, and second state, that is nobility, they were also given extra privilege in the form of collection of tail. So these two taxes, tithes and tail, was collected by them. From whom they were collecting? They were collecting from third state. Whole third state have to give this taxes. Okay, so these kind of certain privileges enjoyed by clergy and nobility by birth, whereas in third state it was not possible. They were not enjoying any sort of privileges. So in demand of removing these privileges, the people went in search of ammunition and destroyed Bastille. So they were supposed to fight against the economic cause. Why there was lack of food in the society of France? Because the population of France increases from 23 million to 28 million in 1789. Due to that increment in demand, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही थी तो भाई उनको खाना भी चाहिए था ना. So population was increasing, and in the same way demand was also increasing for the food grains. This was one of the most important cause जिसकी वजह से people were against the king, because king was just enjoying his freedom. He was not aware and not doing anything for the population of France. And most workers were employed as laborers, जो कि वर्कशॉप में काम करते थे. वो फिक्स्ड वेजेस उनके पास हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी, प्राइसेस ऑफ गुड्स वर इंक्रीजिंग, दे वर नॉट एबल टू कीप पेस विद राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स. उनकी इनकम कम थी और जितनी महंगाई बढ़ रही थी उसके हिसाब से दे वर नॉट अर्निंग द मनी. ये इशू उनके साथ था. फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया. व्हाट डज सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन? एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. तो बेसिक लाइवलीहुड भी नहीं हो पाती है, उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस. ओके, फिर मिडिल क्लास का कैसे क्या रोल था इसमें? मिडिल क्लास प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उनमें एक तरह का
इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स डिफरेंट इमर्ज हो निकल करके आए, जो कि जिसमें से एडुकेटेड पीपल जिनको बर्थ से प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे, पर दे केम आउट और साथ में जो भी बिजनेसमैन थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, हाई प्रोफेशन जैसे लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, फिलोसोफर्स, ये सब मिल करके दे केम टुगेदर एंड दे वेंट टू फाइट अगेंस्ट whom? Against Louis XVI and his feudal system. So उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे, जैसे जॉन लॉके, जिनकी बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. Okay, John Locke has given a book that is two treaties of government. उनमें इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क दिया है. रूसो, जिन्होंने ही कैरीड फॉरवर्ड द आइडिया, और उन्होंने साफ कहा कि ही प्रपोज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट जो कि टोटली बेस्ड हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के. सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसमें? पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों के बीच में, जिनको चुन करके भेजा जा रहा है, और लोगों में, दोनों के बीच में देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, एक तरह का उनकी भी डिमांड्स आगे तक पहुंचाई जाए, दोनों के बीच में रिलेशंस गुड हो. एंड थर्ड वन वाज मॉन्टेस्क, जो कि मॉन्टेस्क इन द स्पिरिट ऑफ लॉ ही प्रपोज्ड कि तीन जो गवर्नमेंट के पिलर्स होते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स को डिवाइड की जाए तीन भागों में, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. फिर हमने देखा कि न्यू असेंबली बनाई गई. उस असेंबली में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए. फर्स्ट, द वन हु इज अबव द 25 years of age plus who is man. The population under the 25 years of age and women, they were not allowed to vote. They were what? They were passive citizens. They were not allowed to vote. And the man who was 25 years plus and giving the 3 days wage of a laborer, they were the only active citizens. They were allowed to vote. Okay, this was the whole system, active and passive. So, and remaining men and women, they were not allowed to vote. This National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. So, Constitution began with the right of declaration of rights, man and citizens, such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality. These were the rights given to people of France. Then we have studied various broken chains that stand for becoming free, bundle of rods that is for unity, eye with a triangle that stand for knowledge, sceptre जो कि symbol of royal power, snake biting to its tail जो कि symbol of eternity, red Phrygian cap जो कि when slave become free उसे बोलते हैं रेड फ्रीजियन कैप. ब्लू वाइट रेड जो कि फ्रांस का आज की तारीख में नेशनल फ्लैग है, उसी कलर से बना है, ब्लू वाइट रेड. एंड विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ को और पर्सोनिफाई करना और उसे ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग बनाना. लॉ टैबलेट, दैट इज द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट.
So these were the topics we have studied till now. So let us start. Point 3, that is France abolishes monarchy and becomes a republic. तो अब जाकर के फ्रांस क्या हुआ, उसने अबॉलिश कर दिया. क्या अबॉलिश कर दिया? मोनार्की, किंग के रूल को अबॉलिश कर दिया. कैसे कर दिया? वी आर गोइंग टू स्टडी. So situation in France continued to be tense during the following years. So Louis XVI has signed the constitution. He entered into the secret negotiation with the King of Prussia, rulers of other neighboring countries. प्रशिया के किंग से उसने सीक्रेट नेगोशिएशन कर लिए, which were too worried by the development in France and made plans to send troops to put the events that had been taking place there since the summer of 1789. तो कुछ डिफरेंट सीक्रेट प्लान्स बनाए लुइस 16 ने. तो नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers throned from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. Among the patriotic song they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Aile. तो उन सब ने जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर हुआ तो सब ने मिलकर के कौन सा सॉन्ग गाया? मर्सिलेस, जिसने रॉजर दे L.I.L. he sang the song, and it was the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got in its name. Marseillaise is now national anthem of France. तो प्रशिया और कौन सा ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उन्होंने जैसे ही फाइट करने जा रहे थे तो फ्रीडम के लिए सभी लोग, जैसे 1947 में इंडिया जैसे आज़ाद हो रहा था या उससे पहले जब हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे तब हमारे यहाँ भी बहुत सारे अलग अलग गाने गाए गए, सॉन्ग गाए गए, वंदे मातरम गाया गया. उसी तरीके से सेम वहाँ पर भी मर्सिलेस सॉन्ग गाया गया जो कि जाके उनका आगे चल के नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बना. द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. डेफिनेटली अगर कहीं पर वॉर होगा तो क्या होगा भाई? लॉस होगा बहुत तगड़ा वाला. किसी भी कंट्री में अगर वॉर होता है तो ह्यूमन लॉस होगा, वहाँ के रिसोर्सेज का लॉस होगा, बहुत सारे लॉस होंगे अगर किसी भी कंट्री में वॉर होता है तो. while the men were away fighting in front, women were left with the task of earning a living and looking after their families. Yes, बहन तो चला गया फाइट करने, पीछे से फीमेल घर पे है, घर में फीमेल है, अपने बच्चों का ध्यान रख रही है. Large sections of the population were convinced that the population had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section. तो political rights किसको मिले? जो भी रिच लोग थे केवल उन्हीं को मिले. Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss
government policies and plan their own forms of action. The most successful of this club was that of Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. So, जो जैकॉबिन क्लब जो बना उसके जो मेंबर्स थे दे वर वेरी लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसके अंदर कुछ स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, ये लोग ही शामिल थे. पहले इन लोगों के साथ पार्शलिटी हो रही थी, इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था. पर जैकॉबिन क्लब जैसे ही बना इसमें ये लोग शामिल हुए और दे प्लान्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पेरिस. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली एंड इलेक्शंस वर हेल्ड. एक इस तरह से सिचुएशन बनी. The women too had been active throughout this period form their own clubs बना लिए गए. जैसे मैन के क्लब्स बने, आर्टिसंस या जो भी प्रिंटर, सर्वेंट, शॉपकीपर्स, इनके क्लब बने, वैसे ही विमेन ने भी डिफरेंट क्लब बनाए. सो जो मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब है वो किससे कौन बिलोंग करता है, जैसे मैंने अभी बताया, बिलोंग टू मेनली टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. ये सब लोग आम लोग जैकोबिन क्लब का हिस्सा बने. और सबसे इम्पोर्टेंट, जैकोबिन क्लब का मेन हेड कौन था? He was बहुत इम्पोर्टेंट है. उनका लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर. इम्पॉर्टेंट है बहुत, नाम याद कर लेना. कौन था? मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. तो जो जैकोबिन क्लब के मेंबर किस तरह के कपड़े पहनने लग गए? They started wearing long stripped trousers. जो किसकी जैसे पहनते थे? डॉक वर्कर्स. डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? ऐसे वर्कर्स जो कि शिप्स के लिए काम करते हैं, शिप्स को अपलोड या अनलोड करने के काम करते हैं, उनको डॉक वर्कर्स कहते हैं. So, this was set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. Okay? Nobles कैसे कपड़े पहनते थे? Knee breeches, जो कि नीज तक होते थे. उनसे अलग हटने के लिए they all started wearing long stripped clothes. कुछ इस तरह के. ठीक है. Then was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as Saints Clotus, literally meaning those without knee breeches. Especially जो लोग नी ब्रीशेस पहनते थे, ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए दे स्टार्टेड वेयरिंग स्ट्राइप वाले कपड़े. एंड सैंट क्यूरोट्स मैन
wore in addition to the red cap that symbolize liberty, और कैप भी पहनने लग गए। ऐसी कैप जैसे अब हमारे यहाँ पे किस तरह की कैप पहनते थे, गांधी कैप का हो या नेहरू कैप का हो, पहनते थे कि नहीं पहनते थे? सभी लोग वाइट कलर की कैप पहना करते थे। मैक्सिमम लोग, एक सिंबल होता है, वैसे ही ये लोग रेड कलर की कैप पहनते थे जो कि सिंबल ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का सिंबल होता है। विमेन however were not allowed to do so, अभी भी विमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है, अभी तक भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इन द समर of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. तो जैकोबिन के मेंबर्स जो कि लार्ज नंबर में थे, एंड भाई खाना नहीं मिलेगा तो हर किसी को गुस्सा आएगा। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, अब लोगों को जो बेचारे डेली वेज अर्नर है उनको खाना नहीं मिलेगा तो लोग गुस्सा होंगे नहीं होंगे? वैसे ही लोग गुस्सा हो रहे थे, लोग गुस्से में आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था यहाँ पे, क्योंकि फूड की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो ऑन द वन मॉर्निंग August 10, they stormed the palace of Tuileries। Tuileries में अंदर गए, massacred the king's guard and held the king himself as a hostage for several hours। तक उसे बंदी बना लिया। किसको? किंग को बंदी बना लिया। Later the assembly voted to imprison the real family and elections were held। देखा, अब किंग अगर लोगों के सपोर्ट में नहीं रहेगा, अगर लोगों के लिए काम नहीं करेगा तो लोग तो विद्रोह करेंगे ही, लोग तो अगेंस्ट जाएंगे ही। इन द सेम वे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर लोगों के अगेंस्ट, वहाँ का हमारे देश में भी अगर कोई लोगों के अगेंस्ट कोई भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वर्क करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट नहीं मिलने वाले। वैसे ही मोनार्की थी, किंग था, किंग लोगों के फेवर में काम नहीं कर रहा था, लोगों के फेवर में काम नहीं कर रहा था तो क्या किया? उसको नीचे उतार दिया, उसे फोर्सफुली हॉस्टेज बना लिया सेवल आवर्स तक। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली और इलेक्शंस हुए एंड फ्रॉम नाउ क्या डिसाइड किया गया? जो भी 21 का है या उससे अबव है, रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ, गॉट द राइट टू वोट। बहुत बड़ी बात हो गई कि अब जो भी 21 साल से बड़ा है, इट डज नॉट मैटर वो अमीर है कि गरीब है, अगर वो 21 साल का है उसे राइट टू वोट है, वो वोट कर सकता है। ठीक है? The newly just a second. The newly elected assembly was called convention। तो जो नई असेंबली बनाई गई उसका नाम क्या था? कन्वेंशन। On 21 September 1792
it abolished the monarchy and declared the France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of government. तो रिपब्लिक कौन सी गवर्नमेंट होती है? रिपब्लिक एज अ नेम डिनोट, रिपब्लिक, व्हेन पब्लिक गेट यूनाइटेड. एंड हाउ डज पब्लिक गेट यूनाइटेड? पब्लिक गेट यूनाइटेड बाय वोटिंग. व्हेन वोटिंग इज गिवन, एक ऐसी पावर उन्हें दी गई हो जो कि ईच ह्यूमन, ईच मैन हैज अ वन वोट, वन वैल्यू. ओके, एंड देयर इज नो hereditary monarchy. You can try and find out about some countries that are republics and investigate and how they became so. So Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason क्या होता है? हमारे यहाँ बिट्रेल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट. जो कोई भी देश के अगेंस्ट काम करे उसे क्या कहलाया जाएगा? देशद्रोही. तो लुइस 16 को देशद्रोही करार कर दिया गया. व्हाई? बिकॉज ही मेड अ ट्रीटी, सीक्रेट ट्रीटी विद रशिया. तो सीक्रेट ट्रीटी बनाई रशिया के साथ, इस वजह से उसे what happened to him? He was sentenced to death. On January 1793, he was executed publicly at the place de la Concorde. de la Concorde पे उसको क्या किया गया? उसे मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया. एंड द क्वीन मैरी एंटोइंटे मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. उसके बाद क्वीन मैरी एंटोइंटे को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया. द रेन ऑफ टेरर, द पीरियड अब 3.1, reign of terror, the period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror, जो कि बहुत बेकार समय, भयानक डरावना वाला समय कहा जाता है. तो रॉबस्पेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को रॉबस्पेयर, एंड रॉबस्पेयर कौन था जिसने क्या बनाया? जैकबिन क्लब्स का फॉर्म किया. तो रॉबस्पेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic. के उसको लगता कि जो लोग हमारे अगेंस्ट काम कर सकते हैं, जो हमारे अगेंस्ट हैं, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. तो जो लोग उसके अगेंस्ट दिखते कि जो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, रिपब्लिक के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, चाहे उसकी पार्टी में ही क्यों ना हो, उन सब लोगों को रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाता ट्रायल के लिए. रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल इज अ सॉर्ट ऑफ कोर्ट. इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, दे वर गुलेटन्ड. वेरी सीवियर पनिशमेंट. गुलेटन्ड क्या होता है? एक तरह का सिस्टम जिसमें गर्दन लगाई दी जाती है और ऊपर से ब्लेड छोड़ दी जाती है, उसे ग्लूटोइन बोलते हैं. तो ग्लूटोइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded. उसे गर्दन काट दी जाती है. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटोइन हु इन्वेंटेड इट. एंड इसका ग्लूटोइन का इन्वेंशन करने वाला कौन है? His name was Dr. Glutoin. Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices.
तो अब यहाँ पर रॉस्पेयर मोनार्क में फिर और रॉस्पेयर में क्या फ़र्क आ गया? यहाँ पर रॉस्पेयर भी वही काम कर रहा है जो मोनार्क कर रहा था। यहाँ पे रॉस्पेयर भी पनिशमेंट देने लग गया, सब लोगों की वेजेस एंड प्राइसेस को भी कंट्रोल करने लग गया, अपने अकॉर्डिंग चलाने लग गया। मीट एंड ब्रेड वर रेशन, ठीक है, राशन कर दिया उसको, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे उसे मिलना चाहिए। ये तो फेवर वाली बात है कि लोगों के फेवर में कर रहा है। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे फोर्सफुली काम करवा रहा है, यहाँ पे फोर्सफुली लोगों से कह रहा है, पीजेंट से कह रहा है कि दे हैव टू शिफ्ट देयर ग्रेन, जो भी उन्होंने ग्रो किया है, एंड गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस फिक्स की है उसके बेसिस पे, उस प्राइस पे उनको सेल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एंड द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो मैदा होती है वाइट फ्लोर, उसने फॉरबिड कर दिया, क्योंकि मैदा महंगी होती है तो उसने कोई इसको यूज नहीं करेगा। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन बी गेलाइट, जो कि इक्वालिटी ब्रेड बोलते हैं, जो कि गेहूं से बनती थी। वही ब्रेड लोगों को खानी होगी, वाइट ब्रेड कोई काम में नहीं लेगा। अ लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कंप्लीट गेहूं से बना होता है। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो sought to be practiced through forms of speech and address instead of traditional monsieur and madam. All French and man, women were henceforth citoyen and citoyenne. अब जैसे पहले सर मैडम बोलते थे हर किसी को, अब कोई सर मैडम नहीं रहेगा, अब हर कोई सिटीजन कहलाएगा, चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, हर कोई सिटीजन कहलाएगा। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स एंड ऑफिसेस में सबकी सब कन्वर्ट हो गई चर्चेस को बंद करके। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. अब रॉस्पेयर और फिर जो उनका मोनार्क था लुइस 16, क्या फ़र्क हो गया? ये भी फोर्सफुली कर रहा है, ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, ये भी सब सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम तो रहा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम वो होता है जो लोगों के हिसाब से चले, लेकिन ये तो रॉस्पेयर अपना इंडिविजुअल अपना चला रहा था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री होती है उसमें पॉसिबल नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा बनाया गया हो और लोगों के हिसाब से वो देश चले, पर एक जने के हिसाब से देश नहीं चल सकता, लोगों के अगेंस्ट जा जाके। तो रॉस्पेयर यही कर रहा था। तो रॉस्पेयर की जो मनमानी चल रही थी उसको देखते हुए कोर्ट जो था वहाँ का, कोर्ट ने उसे ग्लोटाइन के लिए कह दिया और उसे मार दिया गया। फाइनली पनिशमेंट दे दिया गया। ओके, फिर एक डायरेक्टरी रूल्स लाए गए जो कि अच्छा सिस्टम था, एग्जाम में भी आ सकता है। व्हाट इज डायरेक्टरी? भाई सिंपल है, डायरेक्टरी जहां वर्ड आप लोगों को सुनाई दे दे तो डायरेक्टरी का मतलब होता है ऐसे। हमने इसमें इस चैप्टर में 3 गवर्नमेंट के पार्ट समझे हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो लोग होते हैं जो लोग चुन करके भेजते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव होते हैं, लॉज बनाने वाले।
दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो कि लेजिस्लेटिव में से ही बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे मेंबर्स को चुना जाता है जो लेजिस्लेटिव ने रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराए। तो ऐसे 5 मेंबर्स जो कि एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ऐसे मेंबर्स को बोलते हैं हम डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी रूल्स क्या है? डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस हम समझेंगे। अ फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जो कि डिनाइड द वोट ऑफ नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब इसमें क्या किया गया? जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट नहीं कर सकते, ठीक है। देन दीज अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स से एग्जीक्यूटिव बनाए जाएंगे। उन 5 मेंबर्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। एग्जाम में अगर आता है व्हाट इज डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी मीन्स एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। दैट्स इट, इतना ही आंसर आएगा। दिस वाज मीन्ट हाँ, और अगर एग्जाम में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भाई 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम इतना लिखो, 10 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लाइन एक वर्ड का आंसर तो 1 वर्ड में लिखो, और मैक्सिमम डेफिनेशन पूछिए किसी चीज़ की तो भाई 2 लाइन में लिख दो, इससे ज़्यादा आंसर नहीं होगा 1 नंबर का। क्लियर? 2 नंबर का होगा तो 20 वर्ड्स में आ जाएगा, या 2 पॉइंट्स में, या 3 नंबर का होगा तो 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके समझा दोगे, या 5 नंबर का या 6 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा तो आप 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए समझा दोगे तो आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। उसमें आपको जितने नंबर का पूछा है उसके हिसाब से ही आंसर लिखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। This was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins। तो जैकोबिन्स के टाइम पे, जैकोबिन जो रॉब्सपियर था उसके टाइम पे एक ही एग्जीक्यूटिव था तो वो अपनी मनमानी चला रहा था। अब यहाँ पे 5 एग्जीक्यूटिव रख दी गए, 5 एग्जीक्यूटिव होंगे तो 5 एग्जीक्यूटिव से पूछ करके ही डिसीजन लिया जाएगा। पहले 1 सिंगल एग्जीक्यूटिव था जो सिंगल एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले रहा था। नाउ देयर आर 5 एग्जीक्यूटिव एंड ऑल 5 एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू टेक डिसीजन। However, the directors often clash with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. अब यहाँ पे क्या हुआ? अब एग्जीक्यूटिव एक तरफ हो और लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाते थे वो एक तरफ, और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में दोनों में कश्मकश होने लग गई, क्योंकि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता था, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को कंट्रोल करता था। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? जो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के पास कुछ पावर थी कि वो लेजिस्लेटिव को कंट्रोल कर सकते थे, और लेजिस्लेटिव के पास कुछ पावर थी कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते थे। तो दोनों के पास कश्मकश चलती रही, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास पावर थी कि लेजिस्लेटिव में से किसी को भी हटा सके। तो इस तरह से कश्मकश चलता रहा। इसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, अपनी मिलिट्री डिक्टेटर बना लिया उसने, जो मिलिट्री बना ली उसने, मिलिट्री पावर बना ली। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ and of fraternity remained inspiring ideals that motivated public movements in France and the rest of Europe during the following century। तो जैसे आइडियल्स ऑफ फ्रीडम हमने फ्रांस से ही लिया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रांस से लिया है, फ्रैटर्निटी, हमारे जो भी सब ये वर्ड्स प्रियम्बल में लिखे हैं वो हमने सब फ्रांस से ही लिए हैं। सो ये जो आइडियल्स थे, अगर एग्ज़ाम में आते हैं व्हाट वर द आइडियल्स ऑफ फ्रांस, तो आप लिखोगे फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रैटर्निटी, ये सब आइडियल्स कहलाते थे फ्रांस के, आज भी कहलाते हैं। दीज आर द आइडियल्स ऑफ फ्रांस, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक वीमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है, कहाँ पे? ना ही वोटिंग में इंक्लूड किया गया है, ना ही किसी भी सिचुएशन, किसी भी फाइट में इन्वॉल्व किया गया है, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो वीमेन ने क्या किया? अपनी आज़ादी के लिए, अब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, सब जगह बात हो रही है, लेकिन वीमेन को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वीमेन वाज कंसिडर्ड एज अ लो देन इन कंपैरिजन टू मैन। तो वीमेन के लिए क्या किया गया, हम फोर्थ और लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक डायग्राम देखो, अच्छा सा डायग्राम है। The print is one of the many pictorial representatives of the events of 5 October 1789 when women marched to Versailles. सभी women Versailles की तरफ बढ़ी and brought the king back with them to Paris. Yes, let us start. From the very beginning of women were active participants in the events which brought about so many important changes in society. बिल्कुल बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए गए। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives, क्योंकि women भी equally important है। तो they also know they should also involve in the system। तो उन्होंने भी प्रेशराइज किया रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के लिए, ताकि उनकी लाइफ भी इम्प्रूव की जा सके। Most women of the third state had to work for a living. Yes, अपने जीवन व्यापन करने के उनको काम करना ही पड़ता था। They worked as a seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market। इन सब के लिए वो काम करते थे। और एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करते थे। द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल के लिए वहाँ पे काम करते थे। ओके, मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, दे वर नॉट टॉट, नाइदर दे वर गिवन एनी जॉब ट्रेनिंग। Only daughters of nobles or wealthier members of the third state could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had to also care for their families, that is to cook, fetch water, queue up for bread and look after the children। ये सब वर्किंग women को काम करने पड़ते थे। Their wages were lower than the man से उनकी इनकम कम होती थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs बनाए गए, खुद के न्यूज़पेपर बनाए गए। About 60 women's club came up in different French cities। तो एक क्लब बनाया गया, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये एक एग्ज़ाम में आता है, विच वॉज द वन क्लब ऑफ वीमेन। तो आप लिखोगे सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। ओके, वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स, अब मेन क्लब उन्होंने बना लिया। उस क्लब का नाम क्या है? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, जो कि सबसे फेमस ग्रुप था। अब उनके डिमांड क्या थे? देयर डिमांड वॉज डेट वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। जो पॉलिटिकल राइट्स मैन के पास है, सेम पॉलिटिकल राइट्स किसके पास होने चाहिए? women के पास होने चाहिए। एंड women were disappointed that the constitution of 1791 reduced them to passive citizens। अब women को passive citizen बना के रखा। passive citizen कौन होते हैं? जिनको वोट करने का परमिशन नहीं होता है। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जो कि 25 ईयर्स में, ऐसे मैन जो 25 ईयर्स प्लस थे, प्लस दोज मैन हु वर पेइंग द 3 days wages of a labor, जो उन्होंने पे किया, वो एक्टिव सिटीजन कहला रहे थे।
उसके अलावा सब लोग पैसिव सिटीजन थे. ओके. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. Only then they felt would their interests be represented in the government. Definitely. तभी तो they can be represented in the government. जब उनके पास कोई हाई ऑफिस होगा, उनकी पोस्ट असेंबली में होगी, तो ही कुछ ना कुछ उनके लिए वर्क किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Right? Women के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल कंपलसरी कर दिया गया. Fathers could no longer force them into marriage against their will. बिल्कुल मैरिज के लिए उनको फ्री कर दिया गया, उनको फोर्स कोई नहीं करेगा. मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. अगर शादी करोगे तो फ्री विल से, जो कि सिविल लॉ में होगा. डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया, जो कि दोनों मैन एंड वुमेन के लिए अप्लाई होगा. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस. वुमेन को अब वुमेन के लिए, वुमेन के प्रिविलेजेस, जो भी उनके हक में बात होनी चाहिए थी, जो उनके लिए काम होना चाहिए था, वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है. अब तक वुमेन को परमिट नहीं था, ना ही वोट करने का परमिट था, ना ही किसी जॉब में उनको परमिट था, ना ही उनके अकॉर्डिंग शादी हो पा रही थी. कुछ भी उनके लिए अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था. अब धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गया है. Women struggled for equal political rights, however, continued during the reign of terror. The new government issued laws ordering closures of women clubs and banning their पॉलिटिकल एक्टिविटीज. अब जैसे ही न्यू गवर्नमेंट बनी, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? अब रेन ऑफ टेरर क्या है? एक ऐसा समय जिसमें विमेन क्लब को उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया. दे वर डिक्लेयर्ड एज ए इलीगल. मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड. और बहुत से विमेन को एग्जीक्यूट कर दिया गया. This was also a reign of terror. Women movements for voting rights and equal wages continued to the next 100 years in many countries of the world. बिल्कुल अभी 2014-15 तक तो women को right to vote नहीं था कुछ countries में, तो अरेबियन countries में even they were not allowed to drive the car. ऐसा हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड के देशों में हो रहा था. क्लियर? तो the fight for the vote was carried out through an international suffrage movement. इंटरनेशनल सफरेज क्या है? वोटिंग राइट्स. जो भी 18 ईयर्स से प्लस हैं उन सब लोगों को वोटिंग राइट्स मिले. ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th centuries. The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as inspiring memory. यस, जो भी रिवोल्यूशनरी हुए, विमेन ने आगे बढ़ के रिवोल्यूशन में हिस्सा लिया. सो दैट टाइम वॉज एन इंस्पायरिंग मेमोरी. इट वॉज फाइनली इन 1946. ओ माई गॉड, इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट. ये कब से चल रहा था? ये 1892, 1889 से चल रहा था. 1946 में जाके फ्रांस की वुमेन को वोटिंग राइट मिला. और हमारे देश में जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उसके जस्ट बाद ही फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों को वोटिंग राइट दे दिए गए. सो इस तरह से फीमेल भी फाइनली
उभर के आई. They also got the equal status among men. Now men and women are equal in France. So till now we have completed how many points? We have completed 4 points. Now 2 points more remaining, 5 and 6 points. So we have completed 4 points. Now remaining 2 points we will complete in next class. Okay students, so अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, और मैं एक वर्कशीट भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. क्वेश्चन आंसर्स मुझे करके भेजिएगा. हैव ए ग्रेट डे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय.